Good morning, ma'am. Let's read this chapter, beta. Although most of the part is deleted from the syllabus, I hope you know this. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Have you seen the deleted syllabus? No. उत्कर्ष कल क्यों नहीं आए थे? Yes, ma'am. Where were you yesterday? डाल देना. मैं पढ़ने में मैं पढ़ रहा था ना तो मैं क्लास में सो गई मैं पढ़ते पढ़ते मैं भूल गया रात में देर से सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए. तो मैं उठ तो गया था मैं उस वक्त मैंने तो कहा मैं सोचा कि लेट को एकदम क्या हुआ मैं वो फिजिक्स कर रहा तो उसमें मैं लग गया मैं करने में तो छूट गई थी. चलिए, दो मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन हम लोग डिलीटेड पोर्शन को भी एक बार फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट सीबीएसई. कल भी मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर फिजिक्स के पेपर में 11th के क्वेश्चंस आ गए थे. जब आ गए तो आ गए, हम कुछ नहीं कह सकते ना हम कुछ कर सकते हैं. सो इट इज बेटर कि हम लोग जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी एक बार गौर कर लेंगे. दो उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं समझेंगे, बट इतना तो कर ही लेंगे कि अगर आ जाए तो लिख सके. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस. What is the name of the chapter? Evolution. Evolution. What do you understand by evolution? कुछ idea? थोड़ा बहुत. What is evolution? मैम ग्रेजुअल चेंजेस सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस मैम जिससे मैम जो मैम इवॉल्व होता है मैम और अपने मैम कंफर्टेबल रहता है और एनवायरनमेंट के हिसाब से मतलब कि उसके साथ ढाल लेता है अपने जैसे इसको इवोल्यूशन कहते हैं. आगे बढ़ता है, थिंग्स या कोई भी चीज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है. फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ. जब आप छोटे थे, नर्सरी केजी में जाते थे, लाइफ वॉज सिंपल. अब 12th में कॉम्प्लेक्स हो गई, और बड़े हो गए और कॉम्प्लेक्स होगी. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग कि देयर आर चेंजेस and these changes are from simple to complex. Just remember the keywords. Similarly, evolution भी यही है, gradual changes, but changes कैसे changes हैं? Simple life to complex life. Complex life. Yes, like we had primitive organisms. Body systems बहुत evolved नहीं थे, they were very simple. Diffusion से ही काम चल जा रहा था. And then we got the evolution से we got new organisms where the body system is very complex. हर चीज के लिए एक अलग organ system है. So these kind of complex organisms किससे evolve हुए, किससे बने? From simple organisms. So this process is what we call as evolution. So let us define evolution. Sequence of gradual changes from simple life to complex life. मतलब from primitive organisms क्या बन गए हैं? New organisms. Most recent organisms कौन हो गए हमारे? Human beings. चलिए अब हम इसको यहाँ से इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इसमें. Origin and evolution of life. क्या माना जाता है? It is believed that origin of life took place millions of years ago. And study of history of life forms on Earth is called evolutionary biology. तब कैसे life forms Earth पे थे, फिर कैसे आए, वो सारी biology कौन सी biology है जो evolution को study कर रही है? What is that known as? Evolutionary biology. The history of life actually comprises of two events. जब हम evolutionary biology को पढ़ते हैं या life की history को पढ़ते हैं, तो there are two main events in this. First is origin of life. Okay, how life originated, कैसे life start हुई होगी. And second is the mechanism involved in the changes of living organisms through evolution of life. So number पहले तो number one is origin of life and number two is evolution of life.
So what are the two major events when we study evolutionary biology? Origin of life and Origin of life and evolution of life. Evolution of life. पहले लाइफ स्टार्ट हुई, कहाँ हुई, किस फॉर्म में हुई, लेकिन जिस फॉर्म में थी फिर वो बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए. So that is why we say when we study evolutionary biology there are two main events. Tell me very quickly what are the two main events? Origin of life, Origin of life evolution of and life. evolution life. So let us talk about origin पहले, evolution के बाद में बात करेंगे. Origin of life is actually believed कि सबसे पहले हम यूनिवर्स की बात करेंगे कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ. So 15 to 20 billion years old. What is the age of the universe? 15 to 20 billion years 15, old. 20 billion. बेसिकली ये मानते हैं यूनिवर्स में है क्या, गैलेक्सी, स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्स. बहुत डिटेल में नहीं है ये. वी हैव अ थ्योरी विच इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी. आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये थ्योरी गलत है. आपने अगर रिसेंट न्यूज पढ़ी होगी तो ये चीज निकल के आ रही है दैट दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. Many people have come up with lot of logic and evidences to prove कि ये जो हम अभी तक मान के चल रहे हैं ये थ्योरी गलत है. अभी तक तो हम इसी को मान के चलते हैं ना. Have you heard of this theory? Yes, ma'am. Yes, Big Bang ma'am. Theory, yes ma'am. पढ़ी तो सबने हैं बचपन में. सबने पढ़ी होगी इस थ्योरी, लेकिन दी किसने थी इसका नाम याद कर लीजिए तुरंत फटाफट. मैम अबे लेमात हाँ, एबे लेमाइत्रे. एबे अबे लेमाइत्रे. लेमात्रे Who gave the Big Bang theory? अबे लेमात्रे. मैम ये Yes. इटालियन था क्या मैम? कौन? इटालियन था मैम ये. एबे लेमाइत्रे. अबे यस मैम. लग रहा है. बेटा पता करते हैं, चेक करते हैं. अभी चेक करो, बताओ. यस मैम एबे पता है. लेमाइत्रे. Our universe arose as cataclysmic eruption. बेसिकली अचानक से एक एक्सप्लोजन हुआ एंड एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर एकदम लो हो गया. गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड लेटर. बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या कहती है बेटा, एक इरप्शन हुआ अचानक से, बहुत बड़ा इरप्शन हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ एंड उसके बाद टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया एंड दो गैसेस बनी, अपने आप बनी. थोड़े दिन बाद गैसेस व हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये गैसेस जो थी वो आपस में पास पास आके कंडेंस हो गई और गैलेक्सीज बन गई. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी. नंबर वन, फ्रेंच देयर वाज से. एन. हाँ, फ्रेंच से फ्रेंच. okay, यस मैम that's फ्रेंच. nice. Thank you. Okay, we were reading about Abel Lemaitre, Big Bang Theory. Big Bang Theory says एक eruption हुआ. Number one eruption. Number two temperature low हो गया. Number three gases evolved बनी. कौन सी gases बनी? हाइड्रोजन एंड हीलियम. Helium. एंड कुछ टाइम के बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण दोनों गैसेस कंडेंस हो गई, पास पास आ गए पार्टिकल्स एंड क्या बन गई हमारी गैलेक्सीज. कैन यू टेल मी द मेन पॉइंट्स ऑफ बिग बैंग थ्योरी बाय एबेल लेमाइत्रे इन अ सीक्वेंस? पहले क्या हुआ? Ma'am, First eruption, eruption take place. फिर lowering of temperature, Lowering of temperature formation of gases, Hydrogen. and condensing of gases. which gases बेटा? Hydrogen. Ma'am, Helium and helium hydrogen. and hydrogen. ओके, एंड व्हेन गैसेस कंडेंस हो गई तो क्या बन गई? Galaxies. Galaxies. तो हमारा यूनिवर्स तो ऐसे बन गया. यूनिवर्स के बनने के लिए the entire thing we have done, it is believed that the universe is how many years old? 15 to मैम 20 15 से billion. 20 बिलियन ईयर ओल्ड. And it really consists of galaxies. And फिर हमने ये पढ़ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है कि गैलेक्सीज कैसे बनी होंगी अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी. लेकिन आजकल ये बहुत कंट्रोवर्शियल है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कि हो सकता है साल 2 साल में ये हट जाए. यूनिवर्स में क्या हुआ? इरप्शन हुआ, टेम्परेचर बिकेम लो एंड व्हेन टेम्परेचर बिकेम लो गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम अपने आप बन गए. कैसे बन गए? कोई लॉजिक नहीं है, बस टेम्परेचर लो हो गया. हमारे फ्रिज में टेम्परेचर लो ही रहता है, हाइड्रोजन हीलियम क्यों नहीं बनता है? सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे अब लेटेस्ट पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ रिसर्च वाज डन एंड इट इज बिलीव्ड कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना परफेक्ट नहीं है. सो हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड, ग्रेविटेशन के कारण द पार्टिकल्स केम क्लोजर एंड व्हाट वाज फॉर्म्ड इज गैलेक्सीज. अगर आप खुद भी सोचोगे तो ये कोई बहुत लॉजिकल नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं बेटा, तो वहां क्यों नहीं ग्रेविटेशन के कारण गैसेस क्लोज आके गैलेक्सीज बना लेती है? नंबर वन. नंबर टू, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर पे कैसे हाइड्रोजन हीलियम बन जाता है? घर में भी बहुत सारी चीजों में लोअर टेम्परेचर रहता है तो क्या हाइड्रोजन हीलियम अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है?
होता है कहीं रेफ्रिजरेटर के अंदर हाइड्रोजन हीलियम प्रोड्यूस? नो मैम, No, ma'am. So there are so many अमोनिया का होता। questions. Yes, there are so many questions इसी बेस पे रेज किए गए हैं कि एक तो ये बात कि टेम्परेचर लो होने पे गैस अपने आप कैसे बनी, एंड नंबर 2 अगर बनी भी तो दोनों गैसेस ग्रेविटेशन के कारण कैसे कंडेंस होकर गैलेक्सी बना लेगी। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत सारी गैसेस हैं। द बेस्ट एग्जांपल गिवन लॉजिक इज एयर। एयर में इतनी गैसेस हैं तो क्यों नहीं रोज नई गैलेक्सीज बन जाती हैं? ग्रेविटी तो है ही है, इतनी सारी गैसेस भी है एयर में। तो अगर गैसेस ग्रेविटेशन के कारण कंडेंस होकर गैलेक्सी बनाती हैं तो एयर में बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? तो लेट्स गो फर्दर। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो गया, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ इज सपोज टू हैव बीन फाउंड 4.5 बिलियन इयर्स बैक। ठीक है, यूनिवर्स कितना था? 15 to 20 10 से billion. 15 to 20 15 billion। to 20 billion. Please remember Yes. this, and this our earth is believed to be the part of a Milky Way galaxy। ये बचपन में पढ़ा होगा। 4.5 billion Yes, years। it's Milky Way. Its surface was covered with water vapor। ये याद रखना बेटा। ये माना जाता है कि पहले अर्थ पे क्या क्या चीजें थी? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। These 4 things were there on earth। Tell me very quickly, Haldane experiment पढ़ा होगा 10th में। Yes, वाटर ma'am. वेपर सर, मीथेन, Water, कार्बन methane, carbon dioxide, and ammonia. एंड अमोनिया। बेटा प्लीज इसे जरूर याद रखना। एंड देन they were released from molten mass। कोई मास था जो मेल्ट हुआ। क्या मास था पता नहीं, कोई चीज थी, मास था कोई सॉलिड जो मेल्ट हुआ, मोल्टन मास। ओके, कोई सॉलिड मास था, जब वो मेल्ट हुआ तो ये 4 चीजें रिलीज हो गई, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। लेटर फिर ऑक्सीजन बाय यूवी रेज ऑफ द सन। देखो ये सारी की सारी चीजें जो है ऑन द, इनके लेटर क्या डिफरेंस आए? ऑन द वाटर मॉलिक्यूल्स वर ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी तरफ जो वाटर था वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया। एंड हु ब्रोक दिस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? UV rays. UV rays. यूवी रेज ऑफ द सन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से लाइटर गैस कौन सी हो गई हमारी? हाइड्रोजन। वो तो सरफेस से एस्केप कर गई। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ में ही रह गया। दिस इज व्हाट इज बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। व्हिच गैस वाज लाइटर? हाइड्रोजन। दिस एस्केप फ्रॉम द Hydrogen. सरफेस। ऑक्सीजन नीचे ही रह गई। ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिक्स हो गई तो CO2 बन गया, नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो गई तो NO2 बन गया। बेसिकली ऑक्सीजन जो है बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन होकर दूसरे कंपाउंड्स बना लिए। सब्सिक्वेंटली धीरे 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 ओजोन लेयर भी बनती चली गई। As it cooled, the water vapor fell as rain and filled all depressions to form oceans and all other water bodies। Now, ozone layer बनने के बाद क्या हुआ? और थोड़ी कूलिंग हुई तो वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू रेन। एंड जो भी डिप्रेशंस थे अर्थ पे, डिप्रेशंस का मतलब गड्ढे थे बड़े बड़े, उन सब में रेन के कारण पानी भर गया और हमारे क्या बन गए? ओशंस बन गए। एंड जितनी भी बड़ी वाटर बॉडीज हैं ये बन गई। दिस इज ओरिजिन ऑफ अर्थ। Excuse me, वेरी ma'am. क्विकली। यस बेटा। Ma'am, please add Priya. I cannot see her in the waiting room। I cannot even see her in the waiting room, dear। Now I can see 2 people, Priya and Ayush। Okay, we were talking about origin of Earth quickly, beta। How many years back? 4.5 billion. 4.5 billion years. 4.5 billion of the original In the galaxy। galaxy। Milky Way galaxy. Milky Way galaxy. Okay, it is believed that the Earth's surface was covered with what? वाटर वेपर्स, methane, Water carbon vapor, dioxide, methane, carbon dioxide, मीथेन, कार्बन एंड ammonia. अमोनिया। Yes। Then उधर क्या हुआ? वाटर के साथ क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैम वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रोक हो गया। ब्रेक। कैसे ब्रेक हुए? कौन सी रेस थी? मैम यूवी UV रेज rays. से। So out of hydrogen and oxygen, lighter क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एस्केप हो गया। अर्थ पे क्या रह गया? Oxygen. ऑक्सीजन। Oxygen। And oxygen combined with other things and made compounds, like I was giving example of CO2, NO2। So basically oxygen combine हो गया। Oxygen ने later एक और लेयर बनाई हमारी धीरे धीरे। Which was the next layer which was formed? Ozone layer. ओजोन। ओजोन लेयर। Ozone layer। So please remember ozone layer बन गई। And then उसके बाद क्या हुआ? वाटर वेपर। टेम्परेचर जब लो हुआ तो वाटर वेपर
Rain. Fell as किसमें rain. कन्वर्ट होगा? रेन्स में। रेन वाटर में वेपर में मैम डिप्रेशन थे, वो भर दिए। वाटर वेपर पहले रेन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना बेटा, टेम्परेचर लो हुआ तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन हुआ यस मैम, बेसिकली। और जो डिप्रेशन थे वो उसमें भर गए। एंड जितने भी डिप्रेशंस थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, इफ आई कन्वर्टेड टू हिंदी एंड टेल यू अबाउट डिप्रेशंस, तो रेन के कारण दे ऑल कन्वर्टेड इनटू बिग वाटर बॉडीज एंड ओशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ व्हाट वाज फॉर्म्ड, अर्थ वाज फॉर्म्ड। ये हमने किसका ओरिजिन पढ़ा अभी? अर्थ का मैम। अर्थ का। यूनिवर्स का हमने पहले पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। अभी जो हमने पढ़ा दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म। दिस इज बेसिकली हाउ अर्थ ओरिजिनेटेड। नाउ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो बेटा, ये सारी थ्योरीज हैं। ये थ्योरी कि यूनिवर्स कैसे बना, ये थ्योरी थी कि अर्थ कैसे बनी। अब यूनिवर्स बन गया, अर्थ बन गया, तो लाइफ आई। सो वी हैव सम थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ। It is believed that life on Earth appeared about 500 million years after its formation. जब अर्थ बन गई तो 500 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी। इट इज बिलीव्ड दिस कि अर्थ बनने के बाद हाउ मेनी ईयर्स के बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई? टेल मी। 500 million 500 years. मिलियन ईयर्स। 500 मिलियन ईयर्स। इसका मतलब कि जब अर्थ बनी तो कितने टाइम तक वो खाली रही? मैम 4 बिलियन ईयर्स तक खाली रही वो। अरे अभी हमने पढ़ा कि लाइफ फॉर्म्स कब तक नहीं थे अर्थ पे। मैम 5 मिलियन ईयर्स तक मैम नहीं थे मैम, मैम उसके बाद 4 बने थे। बिलियन ईयर्स तक। अरे बच्चे स्क्रीन पे ही देख लो, 1 सेकंड लगेगा। मैम 4 बिलियन ईयर्स तक खाली रही। डू यू थिंक कि व्हाट वाज द रीजन? ऐसा क्या रहा होगा कि इतने टाइम तक देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ एंड फिर मैम अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये सब लाइफ आ भी चीजें गई? मैम ये सब चीजें होने में टाइम लगा होगा ना, कि वाटर ब्रेक हुआ, फिर रेन बनी, फिर वो डिप्रेशन फिल हुए। ये तो अर्थ तो बन गई, अर्थ बन गई, डिप्रेशन हो गए, वाटर बॉडीज भी बन गई हमारी, लेकिन लाइफ ओरिजिनेटेड वेरी लेट। एंड लेट मी कीप टेलिंग यू दिस बेटा, ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, these are all theories. Okay, we do not have sufficient evidence to believe. Like I told you when I started the class, सबसे famous theory जो हम बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, बिग बैंग theory, that is in question these days, and it's no surprise कि with so much of evidence ये theory syllabus से शायद हट जाए एक आध साल में। The reason is that it is proved कि जो बिग बैंग theory है उसमें कोई लॉजिक नहीं है। It does not justify itself. I just told you about 2 points कि why Big Bang theory is not justified. तो बहुत सारी चीजें आप ये मान के मत चलो कि exactly same हो ही होंगी। You should do more research yourself also. कुछ और भी देखो कि क्या नए नए points अब आ रहे हैं, because आप origin of life को लेकर के भी बहुत सारी theories हैं जो इनको बदलने की बात चल रही है। Let's talk about different theories. सबसे पहले है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये सबसे बेकार बकवास थ्योरी है, सबसे पुरानी थ्योरी है। मैम मैम Yes. जो आपने पूछा था कि वो 4 मिलियन ईयर्स के बाद क्यों हुई? That is what I was telling you, that there is no evidence, no theory, no point, no justification. अर्थ तो बन गई, वाटर बॉडीज भी बन गई बेटा, तो फिर अर्थ पे लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट हुई 500 बिलियन ईयर्स तक? एक्चुअली नो जस्टिफाइड क्वेश्चन। अगर आप जाके सर्च करोगे आपको 100 थ्योरीज मिलेंगी इस बात के लिए कि क्यों नहीं लाइफ ओरिजिनेट हुई, बट एज ऑफ नाउ अगेन देयर इज नो सब्सटैंशियल एविडेंस। आई एज एन इंडिविजुअल इफ आई थिंक, आई ऑल्सो वंडर कि क्यों नहीं हुई भाई। ओजोन लेयर बन गई। अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो, जब आपकी अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, आपका ये देखो मिल्की वे गैलेक्सी में बन गई, वाटर वेपर था, मीथेन थी, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, ओजोन लेयर भी बन चुकी थी, वाटर बॉडीज भी थी, देन व्हाई लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट? 500 मिलियन ईयर्स के बाद ऐसा क्या नई चीज आ गई अर्थ के ऊपर कि लाइफ ओरिजिनेट हो गई? कोई ऐसी नई चीज आई क्या जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं और जो अब हम देखते अब है और तब नहीं थी?
See, hydrogen was there, oxygen was there, water was there, ozone layer is there, water bodies are there. So why did life take so much of time to originate? Again, the point, we do not have any justifications for this. They are all assumptions, beta. हमें भी नहीं पता. पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. जब पहले जमाने में साइंस नहीं थी, तो it is believed that God has created life by his special art or special creations. अर्थ, लाइट, प्लांट्स, एनिमल्स सब किसने बनाए? सुपर नेचुरल पावर ने. इसके 3 मेन पॉइंट्स होते हैं. वैसे ये सिलेबस से बाहर है. वी डू नॉट हैव थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द सिलेबस, बट एनीवेज फटाफट पढ़ लेते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच. सबसे पहला पॉइंट, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. जैसा आपको आज दिखता है, लाइफ ऐसी ही थी, स्पीशीज ऐसी ही थी पहले. What we see today, they were created as such. Number 2, diversity was always the same since creation and will remain same in future also. We say कि evolution leads to diversity. 10th में जरूर पढ़ा होगा आपने. Speciation पढ़ा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. New species are formed. लेकिन ये थ्योरी इस चीज को नहीं मानती है. वो कहती है जब क्रिएशन हुआ, जब गॉड ने अर्थ बनाई, तो ये डाइवर्सिटी पहले से ही थी और हमेशा रहेगी. ये और बात है कि हम ढूंढ नहीं पाए, बट अकॉर्डिंग टू देम डाइवर्सिटी पहले ही थी. ये हम बेकार की बात करते हैं कि नई स्पीशीज बन गई. स्पीशीज पहले से ही थी. दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि हम उसको ढूंढ नहीं पाए. एंड अर्थ इज अबाउट 4000 years old. So what are 3 main points of theory of special creation? All organisms were created as such. As such means what we see जैसे है today. वैसे ही. हाँ, ऐसे ही थे पहले. कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ. हम लोग कहते हैं कि हमारे इतने सारे चेंजेस आए, हम चिंपैंजीज के भाई बहन थे और अब हम ऐसे हो गए, बट दे डू नॉट बिलीव ऑल दिस. जैसे कि गॉड ने हमें ऐसे ही बनाया, नंबर 1. एंड डाइवर्सिटी हमेशा से थी. कोई नई स्पीशीज हम नहीं बना सकते हैं, ना बना पाए हैं, ना बना पाएंगे. इवन इन फ्यूचर जो डाइवर्सिटी है वो वही रहेगी जो गॉड ने भेजी. एंड अर्थ इज बिलीव टू बी हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 4000. 4,000 year old. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. अगेन आई वुड सजेस्ट बेटा इतना बस क्लास अटेंड कर लो एंड एक बार रात में ये वीडियो देख लेना. इतना ही कर लोगे ये चैप्टर के लिए तो बहुत है. थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, क्योंकि ये सिलेबस में बहुत सारी चीजें रिलेटेड है. सेकंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया. इट वाज गिवन बाय अर्लियर ग्रीक थिंकर्स. दे से दैट लाइफ ऑन अर्थ अरोज फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ पैंस्पर्मिया. The Greek word for spores is panspermia. What are spores called in Greek language? Panspermia. 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 उन्होंने तो मतलब बेसिकली ये बता दिया कि लाइफ जादू से आई. जादू कैसे हुआ? आउटर स्पेस से कुछ स्पोर्स आए. पता नहीं आउटर स्पेस से, कहीं आसमान से दूर से क्या आए? स्पोर्स आए. एंड वो स्पोर्स जब फट गए तो उसमें से लिविंग फॉर्म्स निकल के आ गए. हम निकल के आ गए, डॉग्स आ गए, प्लांट्स आ गए, स्पोर्स में से सब निकल के आ गए. व्हाट इज दिस थ्योरी नोन एज? Theory of Panspermia. 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 What does the word panspermia mean? Spores. 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 So they believed कि outer space से कहीं से पता नहीं कहाँ से लैंड पे स्पोर्स आ गए, panspermia से. हाँ बेटा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये देखने के लिए कि पहले क्या चीजों को भी थ्योरी मान लिया जाता था. लेकिन मैम ये तो टेंथ है मैम इसमें. Theory of spontaneous generation. Okay, which is the next theory? Spontaneous generation. This says कि life originated from non-living matter automatically. अपने आप non-living चीजों से क्या बनने लग गए? Living बनने लग गए. This theory is also known as theory of abiogenesis or autobiogenesis. What is it known as? Abiogenesis. Theory of abiogenesis. Abio मतलब non-living. Non-living से genesis, मतलब new life was formed. It is supported by Van Helmont, who claimed that mice was formed from a dirty sweat-soaked shirt when put in dirty barn in dirt for 21 days. ये एक priest थे बेटा, Van Helmont. Okay? And उस जमाने में जो priest बोलते थे वो बहुत importance दिया जाता था. In Christian mythology की बात कर रहे हैं हम लोग उस टाइम पे. तो जब ये theory of abiogenesis आया तो ये इसलिए इतनी ज्यादा accept हो गई क्योंकि जो priest थे वहाँ के head priest Van Helmont, उन्होंने इनको support किया. उन्होंने कहा कि अगर आप एक डर्टी शर्ट ले लो, स्वेट सोक्ड शर्ट जिसमें बहुत सारा स्वेट हो, एंड उसे डर्टी बान किसी ऐसी जगह पर डाल दो जहां पे मतलब कूड़ा रखा जाता है,
for 21 days. वहां पे ऐसे गंदी शर्ट स्वेट शर्ट को डाल दोगे तो 21 डेज में वो शर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि नॉन लिविंग चीजों से ही वाज ट्राइंग टू प्रूव कि क्या बन जाएगा? लिविंग चीजें बन जाएंगी। बट 1860 तक आते आते लुइस पास्चर रिजेक्टेड दिस थ्योरी and he said that life came from pre-existing life. He was a person in 1860. He said नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नॉन लिविंग चीजों से कभी लाइफ नहीं बन सकती, लाइफ हैज टू कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली. सो हाउ मेनी थ्योरीज हैव वी डन? लास्ट वीक करा देती हूँ. थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन बाय ओपरिन एंड हैल्डेन, ये 10th में पढ़ी है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल एवोल्यूशन वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ. ही सेड कि नॉन लिविंग से लाइफ बन सकती है. इसका बिल्कुल उल्टा जो इन्होंने कहा लुइस पास्चर ने. He said we can have life, the conditions should be suitable. Conditions क्या क्या होनी चाहिए? High temperature, volcanic storms, and reducing atmosphere containing methane and ammonia. Basically he said कि क्यों नहीं बन सकती, नॉन लिविंग से लिविंग चीजें बन सकती हैं. एंड उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया था कि एक्सपेरिमेंट, अगर आपको याद होगा, हैल्डेन एक्सपेरिमेंट. Yes, ओनली ma'am. व्हाट इज only वो lightning वगैरह artificial create किया था, and they could create amino acids if you remember that part. So what are the conditions needed by theory of chemical evolution? High temperature, volcanic storms, and reducing atmosphere, which should contain methane and ammonia. So very quickly we have done 4 theories related to evolution of life. एक बार जल्दी से discuss कर लेते हैं. Which is the first theory? Theories of बताते हो? special- Theory of special creation. मतलब कि किसने लाइफ बनाई? God. God. इस theory में आप कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो कि special creation theory says that life was made by God. Okay. Which is the next theory? Theories of Theory panspermia. of panspermia. Okay. Panspermia is which language word, beta? Greek. 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 Greek and sports meaning. What does it mean? What is it? Spores. Spores. So they believe कि spores आए. कहाँ से आए? Sports. Outer Outer space. space. Outer space. And they converted into what? Living form. Living forms. They converted into living forms. अपने आप वो spores burst कर गए and all living forms came out. Can you tell me the next theory? Theory of Theory of spontaneous generation. Spontaneous generation means अपने आप. Okay. What is the main point of this theory? formation of life from non-living things. Yes. Spontaneous का मतलब क्या होता है बेटा? अपने आप हो जाना किसी चीज का. Okay. So अपने आप नॉन लिविंग से क्या बन गया? Living things. Living. तो ये भी थ्योरी हो गई. Which is the next theory? Theory of chemical evolution. Chemical evolution. And chemical evolution. एक वो पर्सन का नाम याद रखना जिसने सपोर्ट करा था ये शर्ट एंड माइस वाला इंसिडेंट. Who was this? Van Helmont. Van Helmont. Yes. According to him, अगर हम स्वेट शर्ट को 21 days के लिए गार्बेज में या बान में रख देते हैं तो it converts into what? Mice. Mice. And do try doing this experiment. Okay. And the next one is, the last one is, who was the person who opposed this theory? Louis Louis Pasteur. Louis Pasteur. उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती थी कि प्रीस्ट की बात को मना कर देना या इग्नोर कर देना. Yes, उस ma'am. टाइम पे मैम लोग भी तो नहीं एक्सेप्ट करते थे फिर कहते कि तुम्हारे इसके नहीं हो निकल जाओ. जो भी प्रीस्ट के खिलाफ जाता था उस टाइम हाँ पे मैम. उसके साथ तो बहुत बुरा होता ही था उन दिनों. So if he really had the guts to say no. He said नहीं, ऐसे नहीं होता है. And then according to him, life originates only from Pre-existing life. pre-existing life. Pre-existing So we life. came across the last theory. आपने भी बताई दी थी. Last theory was what? Theory of chemical evolution. Chemical evolution. Chemical evolution. If you read the history of those days, going against the priest was even this person जो हमारे father of genetics. He also had to face a lot of
lot of opposition from the church and the priests for this reason. क्योंकि वहां पे पोप priest is the final person. उनके बाद कुछ नहीं. Nobody even used logic for this. अगर आपने वो सब पढ़ा होगा, वो क्या मनाते हो आप लोग फरवरी में? कौन सा डे होता है? 14 फेब को कौन सा डे मनाते हैं? मैम वैलेंटाइन डे। हाँ, तो अगर आपने फादर वैलेंटाइन की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कितना टॉर्चर किया जाता है इफ यू गो अगेंस्ट द चर्च। पता भी नहीं होगा, वैलेंटाइन डे सब मनाते हैं। पता है वैलेंटाइन के बारे में कुछ? यस मैम, यस मैम, चलो, थोड़ा बहुत हाँ। पता है तो चलिए, गुड। Curious spontaneous generation. Now we come to experimental evidence of chemical evolution of, or we call it as Miller-Urey experiment. Miller and Urey in 1953 performed an experiment to clearly demonstrate that ultraviolet radiations or electric discharge, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए. Either you should have UV rays or you can have electric discharge. And then combination of certain compounds like methane, ammonia, hydrogen, water vapor, चार चीजें ले लो एंड टेम्परेचर कितना रख लो? 800 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम लोग करें इसको फटाफट। ये देखो, ये आपका ये देख रहे हो, ये बीकर जो है, इसमें चार चीजें हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए जल्दी से। टेल मी व्हाट आर द फोर थिंग्स? मीथेन, ammonia, अमोनिया, water, वाटर। मैम मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन। एंड दिस चेम्बर इज कॉल्ड द स्पार्क चेम्बर, क्योंकि इसके अंदर हम स्पार्क जनरेट करेंगे। जिस चेम्बर में हमने गैसेस फिल कर दी सारी की सारी, दिस गोल वाला चेम्बर, व्हाट इज दिस चेम्बर कॉल्ड एज चिल्ड्रन? spark स्पार्क chamber. स्पार्क चेंबर। एंड हियर वी हैव पुट इलेक्ट्रोड्स, जिससे कि हम स्पार्क क्रिएट करेंगे। बिकॉज दे सेड कि दो चीजें चाहिए, आइदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सो दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वी हैव डन नथिंग। हमने ये एक चेम्बर ले लिया, दिस इज योर स्पार्क चेम्बर। इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से यहाँ पे स्पार्क क्रिएट कर दी एंड कौन सी चार गैसेस फिल करी है? मीथेन, ammonia, अमोनिया, water. वाटर, हाइड्रोजन। Now the temperature is quite high inside the spark chamber because of the presence of this spark. ये यहाँ से spark create हो रही है। अब हम नीचे जा रहे हैं। Water, ये condenser है। What is this? This is the condenser. So यहाँ पे जब heat होगा बेटा, water, हमने water भी डाला था यहाँ पे। So जब water heat होगा तो water vapor में convert हो जाएगा। When water vapor will pass through this condenser, basically what will happen is the water vapor will convert into water after condensation. तो हमने यहाँ से तो वाटर को बाहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम फ्रेश वाटर डालते जा रहे हैं ताकि ये कंडेंसर का काम करते रहे, यहाँ टेम्परेचर ठंडा रहे। आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है। वाटर वेपर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वाटर ड्रॉपलेट्स। ये आपका ट्रैप है। व्हाट इज ट्रैप? जहां पे भी कोई चीज को आपको रोक के रखना है या पकड़ के रखना है, आगे नहीं जाने देना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रैप। ट्रैप फॉर सैंपल्स, जो भी चीज आपको कलेक्ट करनी है, जो भी सैंपल लेना है, यहाँ पे कलेक्ट करना है। सो दिस इज नोन एज ट्रैप फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। एंड बेसिकली यहाँ पे हमने क्या भर रखा है इस नीचे वाले कंटेनर में? लिक्विड वाटर। व्हाट इज दिस? लिक्विड वाटर। इसमें अब यहाँ पे हमारा बॉइलिंग वाटर। व्हाट इज देयर इन दिस? बॉइलिंग वाटर। कैन यू टेल मी यहाँ से बॉइलिंग वाटर हम क्यों ऐड कर रहे होंगे? मैम जिससे स्टीम उधर जाए, इससे स्टीम बन जाए। हम क्या प्रूव कर रहे हैं अब इसको देखो। हमने एक फ्लास्क के अंदर, ये तो सिर्फ सेटअप है, अब एक्सपेरिमेंट समझो। हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट करा इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। दिस इज अ क्लोज्ड फ्लास्क एंड हमारे पास क्या क्या मेन चीजें हमने ली? अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन। रेशियो याद रखनी है बेटा बहुत अच्छे से, बीच में अमोनिया रखनी है। सो आप इसी सीक्वेंस में याद रखो। पहले कैसे याद रखोगे? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। रेशियो रहेगी 2:1:2। ओके, 1 में सिर्फ कौन सी चीज रहेगी? अमोनिया, बाकी दोनों 2 रेशियोज में। सो मीथेन इज व्हाट रेशियो? 2. And hydrogen is also what ratio? 2. 2. Only ammonia जो है you take it as ratio 1. So 2:1:2 में हमने ये सारी चीजें ले ली एंड ऐसा एक कंडीशन क्रिएट करी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रही होंगी, उसको हमने लैब में क्रिएट करा। एंड वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एग्जैक्टली जो हाल्डेन में करा था वही चीज बेटा।
Okay, in the presence of complex molecules like sugar, pigments, nitrogen bases and fats in the flask were also observed. Apart from amino acids, ऐसे ही experiments करी दूसरे scientists ने, and उन्होंने भी क्या show कर दिया बेटा? They showed the presence of complex molecules, और भी चीजें बना के दिखाई like sugar, pigments, nitrogen bases, fats, कोई भी non living चीज लेकर के क्या बना के दिखा दिए? Amino acids. Different scientists. So basically, what are they proving? They're proving which theory? Chemical evolution theory. Chemical evolution. Chemical evolution theory basically says कि non living चीजों को हम किस में convert कर सकते हैं? Living things में convert कर सकते हैं. So आपका ये Miller-Urey experiment जो है, this supports the theory of abiogenesis. Yes or no? एक तरह से देखा जाए तो Miller-Urey theory is believing or supporting which theory? It is supporting your Miller-Urey experiment. बेसिकली ए बायोजेनेसिस को ही तो सपोर्ट कर रहा है कि हम नॉन लिविंग चीजों से क्या बना ले रहे हैं, दो वो शर्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट इज ए बायोजेनेसिस आल्सो. अगर हम एनालिसिस करते हैं ऑफ मीटेरोइड कंटेंट, व्हाट आर मीटेरोइड्स पता है? Yes, ma'am. Meteors. Yes, ma'am. पता है ना? ma'am. Meteors which reach the earth surface, what are they called as? Meteoroids. ठीक है? Meteorite. सो मीटेरोइड का Meteoroids. एनालिसिस किया गया, हमने देखा कि मीटेरोइड्स के अंदर क्या होते हैं. देन इट रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग द सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस. मीटेरोइड्स को जब हमने स्टडी किया तो यही सारी चीजें किसके अंदर मिली? मीटेरोइड्स के अंदर भी मिली. दैट मीन्स बेटा जो कुछ अर्थ पे चल रहा है, सेम टू सेम प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इनटू अमीनो एसिड्स और लाइफ, वो स्पेस में कहीं और भी चल रहा है. दिस इज प्रूव्ड बाय meteorites which reach the earth surface. Meteors which reach the earth surface are called meteorites. So when meteorites were observed, तो ये पाया गया कि यही सारी चीजें जो हमने इसमें देखी हैं, कौन सी वाली? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम रेशियो में मिलती हैं. तो बेसिकली ये मान के चलते हैं कि शायद यही प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस जो हम लोगों के यहाँ चल रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे यहाँ हुआ होगा, ऐसा ही प्रोसेस कहीं और स्पेस में चल रहा है. दिस इज एन इंडिकेशन कि बहुत जल्दी स्पेस में एक और लिविंग प्लैनेट आएगा, मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत जल्दी आने वाली है. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. गॉट द पॉइंट? व्हाट डू दे मीन बाय दिस? कि हमारी अर्थ जब बनी होगी तब यही प्रोसेस चल रहे होंगे, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ चीजें छिटक के इधर उधर चली गई होंगी. तो वी बिलीव कि मेटेरॉइड्स ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं. देयर इज अ पार्ट इन द स्पेस जहाँ एग्जैक्टली यही प्रोसेस चल रहा है, where non-living things are being converted into living things with limited